Yes. So today we'll be talking about this differentiation, de-differentiation and re-differentiation, right? When a particular plant it grows, when a particular cell it is growing, जब कोई cell grow हो रही है तो अलग अलग phases से हो जाती है, right? So that three phases you can see here I have shown कि it is differentiation and there is de-differentiation and there is re-differentiation. वो नाम में इतना थोड़ा confusion होता है ना? पर अभी कैसे याद रखेंगे हम कि when a particular what you call as plant is growing, है ना, we know that the plant's life and the cells they are added from the meristem, so it may be a apical meristem or it may be a cambium or wherever it may be. So if it starts from a apical meristem, a shoot meristem or a root meristem, like the cell is being formed, अभी अभी cell बनी है अभी, और अभी वो cell बनी है उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करना है, तो वो डिवाइड हुई. हमने बोला था ना, जब फेजेस ऑफ ग्रोथ देखे थे तो हमने क्या बोला था कि पहला फेज होता है मेरिस्टेमेटिक फेज. तो यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक फेज हुआ तो ग्रोथ हुई सेल बनी. तो भी सेल बनते जा रहे सारे अनडिफरेंशिएटेड है अब तक उन्होंने सोचा नहीं है कि क्या करना है. जैसे अभी आपने सोचा है कि अभी आपको नीट करना है, पर जब स्कूल में थे तब आपने नहीं सोचा था कि आपको क्या करना है. अब बस 5th से 6, 6th से 7, 7 से 8, 8 से 9 जो कल मैंने आपको बोला जा रहे थे, ग्रोथ होते जा रही थी. पर अभी आप क्या हुए, आप डिफरेंशिएट हुए. अभी आप आपके फ्रेंड से अलग हुए. किसी ने कॉमर्स लिया, किसी ने आर्ट्स लिया, किसी ने साइंस लिया, कोई डिप्लोमा को चला गया. अभी आपने क्या किया कि खुद में चेंजेस लाए कुछ ना कुछ. कैसे चेंजेस लाए? आपने नीट का क्लास लगा दिया, वो इंजीनियरिंग वाले ने जेई का क्लास लगा दिया. आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, उस हिसाब से आपने खुद में क्या लाए चेंजेस. तो आप उनसे क्या हुए, डिफरेंशिएट. बाकी सबसे क्या हुए, आप डिफरेंशिएट. वैसे सेल भी डिफरेंशिएट होती है. वो सोचती है कि मुझे पैरेन्काइमा बनना है, मुझे अभी कॉलेनकाइमा बनना है, मुझे भी स्क्लेरेनकाइमा बनना है. आई वांट टू बिकम अ जाइलम ट्रैक्री एलिमेंट. सो अकॉर्डिंगली इट विल मेक चेंजेस, है ना. इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, probably it will, he or she has to focus more on mathematics, on physics. If someone is preparing for NEET, has to focus on biology. So accordingly they will do changes. They will go and buy such books. So cell also accordingly will do some changes. If the cell wants to become a trackery element, it will try making its cell wall deposition in such a way that they are more sturdy. It will see that it is able to transport water over long distances, because xylem will have to do that. Tracheids are part of xylem, right? So if it wants to be part of that xylem, it has to mold itself, है ना. ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. कोई पुलिस में जाने का तैयारी कर रहा है तो वो ग्राउंड पे जाएगा, वो अपने आप को उस हिसाब से क्या करने की कोशिश करेगा, ट्रेन. तो cell, it differentiates, it decides what it wants to do. See, when the cell is formed from a meristem and now it differentiates for the first time, that is what is called as differentiation. So let's see what NCERT says. NCERT says that cells from your root and shoot apical meristem and cambium, they differentiate and mature. And they show major structural changes. कहां पर? उनके सेल वॉल में और उनके प्रोटोप्लाज्म में. आपको याद रखना है कि ये मेरिस्टेम से बने हैं, पहली बार डिफरेंशिएट हो रहे हैं, और उसको हम डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन. क्यों? पहली बार क्या हुआ, डिफरेंशिएट. अब ये मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस कहां पे हुए, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म. एग्जांपल उन्होंने किसका दिया है? फॉर एग्जांपल अगर ट्रैक्री एलिमेंट बनना है किसी सेल को, वो अपना प्रोटोप्लाज्म लूज करेगा क्योंकि डेड है वो, and it will become having a strong elastic lignocellulosic cell wall. Secondary cell wall उसमें बनना चालू हो जाएगा. क्यों? Because it has to carry water to long distances, right? So therefore under extreme tensions also, right? So this phenomenon is called as differentiation. So a cell is formed from a meristem, decides to do something, brings about some changes in itself, and now differentiates from other cells and does its function. That is differentiation. Once the differentiation is over, it doesn't divide. नॉर्मली अभी डिफरेंशिएट हो गए, आपने अभी डिसाइड कर लिया कि अभी नीट करना है, तो आप अभी फिर से यू विल नॉट गो बैक टू 11th and 12th and do something like that. अभी इससे आगे आप जाएंगे. Someone is like giving JEE, but maybe अभी उसका वहां पे नंबर नहीं लगा, तो मे बी वो सोच सकता है कि मे बी आई विल ट्राई नीट, या फिर वो सोचेगा आई विल ट्राई CET. इन दैट केस ही और शी विल कम बैक, है ना. मे बी वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था, पर बाद में उसको लगा नहीं यार, आई लव बायोलॉजी मोर, है ना. तब तक उसने मेरे लेक्चर नहीं किए होंगे. तो फिर जब वो मेरे लेक्चर करना चालू करेगा, उसको लगेगा नहीं आई कैन बिकम डॉक्टर, आई थिंक हैविंग लर्निंग बायोलॉजी इज मोर इंटरेस्टिंग. तो अभी क्या हुआ, वो पहले डिफरेंशिएट हो चुका था, उसने बायोलॉजी छोड़ दिया था,
वो कहाँ जाने वाला था, इंजीनियरिंग। पर अभी ये सब सुन के उसको क्या लगा कि मुझे वापस से रिवर्स आना है। तो प्लांट में भी ऐसा होता है कि सेल जब परमानेंट हो गई है, जब सेल ने डिसाइड किया है कि अभी मुझे डिवाइड नहीं होना है ना, हम पढ़ते हैं ना सेल्स दो टाइप के, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरे परमानेंट। जो डिवाइड होते हैं वो कौन से, मेरिस्टेमेटिक। जो बार बार डिवाइड होते हैं वो कौन से, मेरिस्टेमेटिक। जो डिवाइड नहीं होते वो कौन से, परमानेंट। तो हमको सिखाया क्या है कि जो डिवाइड हो रहे हैं वो मेरिस्टेमेटिक, जो डिवाइड नहीं हो रहे वो कौन से, परमानेंट। आपको भी क्या सिखाया है, जो मैथ्स लेगा इंजीनियरिंग करेगा, वो जेई करेगा वो इंजीनियरिंग करेगा, ऐसे ही मालूम है हमको भी, मैक्सिमम लोग वही करेंगे। पर कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो सोचते होंगे कि नहीं अभी मैंने 2 साल किया है, पर लेट मी टेक 1 more year एंड अगेन कम बैक एंड स्टडी बायोलॉजी एंड नाउ गो फॉर नीट। वैसे ये सेल जिसने सोचा था कि डिवाइड नहीं होना है, अभी ये सेल ने क्या सोचा कि मला डिवाइड व्हायचं नहीं, पर फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब नहीं क्या, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो वंस अगेन, है ना। तो अभी उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं फिर से डिवाइड होंगी, तो फिर डिवाइड होना चालू करती है। कौन सी सेल, अब कौन सी सेल डिवाइड हो रही है, मेरिस्टेमेटिक वाली या परमानेंट वाली, विच वन, परमानेंट। परमानेंट वाली सेल क्या कर रही है, डिवाइड। अब परमानेंट वाली सेल जब डिवाइड हो रही है, वो डिफरेंशिएट हुई थी पहले, पर अभी वो फिर से क्या हो रही है, डिवाइड। पहले वो क्या हुई थी, डिफरेंशिएट। अभी वो फिर से क्या हो रही है, डिवाइड। मतलब डिफरेंशिएशन को उसने पकड़ के रखा कि डिफरेंशिएशन छोड़ दिया। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, अलग हो जाना, डिवाइड ना होना, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अभी उसने क्या किया, फिर से डिवाइड होने का डिसीजन लिया, तो उसने डिफरेंशिएशन को पकड़ा या छोड़ा, छोड़ दिया, तो दैट इज डी डिफरेंशिएशन। उसने बोला कि मैं डी डिफरेंशिएट हो रही हूं। ये जो सारे सेल्स उसके वहां पे बैठे थे डिफरेंशिएट हुए हुए, सारे वो दोस्त तो इंजीनियरिंग को चले गए ना, पर इसने अभी सोचा ना कि मैं फिर से रिवर्स आऊंगा, तो उसने उन डिफरेंशिएशन वालों को छोड़ दिया। सही गलत की बात नहीं है, उन्होंने सही किया इन्होंने गलत किया, ऐसे नहीं, चॉइस की बात है। पर ये सेल ने अभी सोचा कि आई विल नॉट बी विद दीज सेल्स, आई डिवाइड अगेन, I'll give myself another chance, I'll again divide. So when a permanent cell again thinks of dividing, that phenomenon is called as de-differentiation. When a meristematic cell stops dividing, becomes a permanent cell, that is differentiation. When a permanent cell which was not supposed to actually divide, that decides to divide again, that is what is called as de-differentiation. So living differentiated cells which has lost the capacity to divide again regains the capacity to divide under certain conditions, and then it forms a meristem again. That is a secondary meristem. So that we will study in some other lectures. तो दो secondary meristems जो बनते हैं सेल में या प्लांट में, that is interfascicular cambium and cork cambium. तो ये जो कॉर्क कैम्बियम बना है, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम बना है, वो कहां से बना है, मैच्योर पैरेन्काइमा सेल्स जो एक्चुअली डिवाइड होते नहीं, पर इस केस में वो वापस क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो दे डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। तो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज व्हाट, डी डिफरेंशिएशन। अभी देखो, जैसे इस बंदे ने ये छोड़ा, अभी मैथमेटिक्स छोड़ के अभी ये बायोलॉजी पढ़ने लगा, तो वो डी डिफरेंशिएट हो गया। पर अभी ये बायोलॉजी पढ़ के फिर शायद नीट करेगा, फार्मेसी करेगा, एग्री करेगा, वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू डू। अब ये फिर दूसरों से मतलब सेम रहेगा कि वापस डिफरेंशिएट हो जाएगा बाकियों से, मतलब बाकी सब लोगों से। अभी उसने डिसाइड किया ना कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, तो अभी वो नीट करेगा, तो अभी वो इंजीनियरों से वापस डिफरेंशिएट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। पर अभी ये पहले भी डिफरेंशिएट हुआ था, पहले डॉक्टरों से डिफरेंशिएट हुआ था, अभी किससे डिफरेंशिएट हुआ, इंजीनियर से। तो ये दोबारा डिफरेंशिएट हुआ। तो है ना, आपकी टेस्ट हो रही है, सपोज वो आज कैंसिल हो गई या हुई पर पेपर लीक हो गया, तो हम क्या बोलते हैं कि ये वापस होगी टेस्ट, तो मैम या सर क्या बोलते हैं, हम क्या करेंगे, रीटेस्ट। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। यू स्टार्ट फ्रॉम वन मेरिस्टेमेटिक सेल, राइट, you start from a same meristem, and then you will find that you can form different types of tissues and organs from the same meristem. So that is open. हम बोलते हैं ना, जैसे पेरेंट्स को हम पूछते हैं कि आपके बच्चे क्या करेंगे, तो बोलते हैं हम ओपन है, वो उनका चॉइस है।
वो इंजीनियरिंग करे, डॉक्टरी करे, फार्मेसी करे, एग्री करे, या एनिमेशन करे, या माइक्रोबायोलॉजी करे, या बायोटेक्नोलॉजी करे, डॉक्टर बने, रिसर्चर बने, वी आर ओपन। तो ओपन यानी क्या कि आपके पास सारे ऑप्शंस कैसे ओपन। तो प्लांट के पास भी मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज बनेगा। मेरिस्टेमेटिक है यानी इट कैन फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो हम बोलते हैं कि प्लांट की जो ये ग्रोथ है वो कैसी है, ओपन। ओपन मीन्स व्हाट, सेल्स फ्रॉम द सेम मेरिस्टेम कैन फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी, है ना। आप लाइक आपके भाई बहन होंगे, सपोज यू आर 3-4 ब्रदर्स सिस्टर्स एट होम, तो योर पेरेंट्स इफ दे आर ओपन तो बोलेगा ठीक है, इसको डॉक्टर बनना था, इसको आर्टिस्ट बनना था, इसको सिंगर बनना था, तो दे आर ओपन। प्रोडक्ट तो सेम पेरेंट्स के, है ना। यहाँ पे अभी वो नहीं बैठ रहा एग्जाम्पल, बट आप समझ गए मुझे क्या बोलना है कि मेरिस्टेम तो एक ही है, पर मैच्योर होने के बाद उसमें से एक ही टाइप का टिश्यू बनेगा कि अलग अलग टाइप के बनेंगे, अलग अलग डिफरेंट। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ। अब क्या बनेगा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किसके पास है, मतलब इन प्लांट्स एटलीस्ट, इन ह्यूमंस ऑल्सो इट हैपेंस। मतलब हम इंग्लिश में एक कहावत भी है ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, है ना। आप जिसके साथ रह रहे शायद वैसे हो जाएंगे, है ना। लोग ऐसे बोलते हैं ना, आपके भी पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि ये अच्छा पढ़ते हैं, आप इसके साथ रहो तो आप भी पढ़ेंगे, पर बाद में वो आपके नाद में लग के वो भी नहीं पढ़ता, वो अलग बात हो गई। बट देन एज आई सेड कि आप कहाँ हैं, किसके साथ है, दैट डिसाइड्स कि आप क्या बनेंगे, है ना। तो वैसे इन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई सेल है, सपोज रूट की, रूट अपाइकल मेरिस्टेम की सेल है, नाउ यू टेक दैट सेल एंड यू टेक दैट सेल टू द टिप ऑफ दैट रूट, सपोज दिस इज द रूट, और आप उसके टिप पे लेके जाओ उसको। तो इफ यू आर कीपिंग सही, इट इज एट, इफ यू आर कीपिंग इट एट द रूट टिप, प्रॉब्ली इट विल बिकम द रूट कैप, क्योंकि वहां पे क्या बन रहा है, रूट कैप। आप नीट की क्लास में जाके बैठेंगे तो देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल बिकम अ डॉक्टर। आप इंजीनियरिंग मतलब जेई सीईटी की क्लास में जाके बैठेंगे तो इट इज हाई चांस यू विल बिकम अ इंजीनियर। आप जहां पे है वैसे शायद हो जाएंगे, आप जेई का पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बन सकते। तो वैसे ये सेल इफ इट इज एट द टिप इट विल बिकम रूट कैप। इफ यू आर पुशिंग इट टुवर्ड्स द साइड्स, अगर आप इसको साइड्स पे डाल रहे हैं यहाँ पे, तो बाहर का लेयर क्या होता है किसी भी प्लांट की सरफेस का, हम सबसे बाहर का लेयर, रूट का, स्टेम का, लीफ का, सबसे बाहर का लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस। हम उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। सो इफ यू आर पुशिंग द सेल्स टू द पेरिफेरी देन प्रॉब्ली इट विल बिकम अ एपिडर्मिस। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि द लोकेशन ऑफ दैट सेल विल डिसाइड द फेट ऑफ दैट सेल, where that cell is present. If the cell is present at the tip, it will become root cap. If the cell is present at the periphery, it will become the epidermis. So it is the location of that particular cell. तो आप अभी कहां पर है, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं, that probably is going to decide your future also according to this theory, है ना। प्लांट के ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको समझ में आ रही बात, प्लांट ने कुछ भी नहीं किया, वो सेल बनाई, उसको एपिडर साइड में ढकल दिया, वो खुद ही एपिडर्मिस बन गया। सेल बनाई, उसको टिप पे ढकल दिया, वो खुद ही क्या बन गया, रूट कैप। जहां पे वो प्रेजेंट है, दैट मीन्स द लोकेशन ऑफ दैट सेल इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ दैट सेल। समझ में आ रही है आपको बात। सो दिस इज द फिनोमेनन ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड द फेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, राइट। थैंक यू।